حضرت علی۔ جنہوں نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، اور آنکھ بند کی تو اللہ کے راستے میں شہادت کی حالت میں۔ آج کے اس پہلے حصے میں ہم جانیں گے حضرت علی کی ولادت کا عظیم واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش، اسلام قبول کرنے کا تاریخی لمحہ اور مکہ کے ابتدائی امتحانات۔ آخر تک ضرور سنیے گا کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جہاں سے ایک عظیم تاریخ شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ولادت کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ روایات کے مطابق آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد جب بیت اللہ کے قریب پہنچیں تو کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور وہ اللہ کے حکم سے اندر داخل ہو گئیں۔ 3 دن بعد جب باہر آئیں تو ان کی گود میں ایک نورانی بچہ تھا، یہ تھے علی۔ یہ ولادت صرف ایک پیدائش نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر دین اسلام کا مضبوط ستون بنے گا۔ حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محافظ۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد وہ عظیم خاتون تھیں۔ یوں حضرت علی ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں وفاداری، غیرت اور سچائی نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ جب مکہ میں قحط پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنے گھر لے آئے۔ ذرا تصور کیجئے وہ بچہ جو روز رسول اللہ کو عبادت کرتے دیکھے، جو ان کے اخلاق، ان کی دعا اور ان کی خاموش راتوں کا گواہ ہو۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ کے بچے کی طرح رہتا تھا جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہی صحبت تھی جس نے علی کو علی بنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اسلام کی دعوت شروع ہوئی، اس وقت حضرت علی کم عمر تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی نے عرض کیا، میں اپنے رب سے اجازت لے لوں۔ رات بھر غور کیا اور صبح ہوتے ہی عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یوں حضرت علی اسلام قبول کرنے والے پہلے بچوں میں شامل ہو گئے۔ نہ کسی کا دباؤ، نہ کسی کا خوف، صرف حق کی پہچان۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں پر ظلم بڑھتا گیا۔ کہیں تانے، کہیں دھمکیاں، کہیں رسول اللہ پر حملے۔ حضرت علی ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، کبھی سایہ بن کر، کبھی ڈھال بن کر۔ وہ بچپن ہی میں یہ سیکھ چکے تھے کہ سچ کا راستہ آسان نہیں، مگر یہی راستہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت علی صرف بہادر نہیں تھے، وہ علم و حکمت کا سمندر بھی تھے۔ خاموشی میں دانائی، بات میں وزن اور عمل میں اخلاص، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ اگر تربیت درست ہو تو کم عمری بھی تاریخ رقم کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے حضرت علی کی زندگی کا آغاز دیکھا، ایمان سے بھرا ہوا آغاز، وفاداری سے روشن آغاز۔ لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے ہجرت کی وہ رات، قتل کا منصوبہ اور حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جانا۔ یہ صرف ایک عمل نہیں تھا، یہ جان قربان کرنے کا اعلان تھا۔ اگلے حصے کے لیے تیار رہیے، جاری ہے۔ ہجرت کی رات، بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امانتوں کی واپسی۔ ذرا اس رات کا تصور کیجئے جب مکہ کی گلیاں خاموش تھیں مگر ایک گھر کے باہر تلواریں چمک رہی تھیں۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رات قتل کر دیا جائے گا، اور اس لمحے ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے جائیں، آپ کے بستر پر میں سو جاؤں گا۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ ناظرین کرام، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا حضرت علی کا بچپن، ان کی پرورش اور اسلام قبول کرنے کا عظیم لمحہ۔ آج کے اس حصے میں ہم اس قربانی کو دیکھیں گے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آج ہم بات کریں گے
हिजरत से पहले का खतरनाक मंसूबा, बिस्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोने का लम्हा, मौत के साए में रात गुजारना और कुफ्फार की अमानतें वापस करने का अजीम किरदार। ये हिस्सा सिर्फ तारीख नहीं, ये ईमान की इंतहा है। कुरैश का खुफिया मंसूबा। जब इस्लाम मक्का में फैलने लगा और लोग गिरोह दर गिरोह मुसलमान होने लगे तो कुरैश घबरा गए। दारुन नदवा में एक खुफिया इजलास हुआ, सब सरदार जमा थे। आखिर ये तय पाया कि हर कबीले से एक नौजवान लिया जाए, सब एक साथ हमला करें ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून किसी एक कबीले पर ना आए। ये फैसला हो चुका था और रात मुकर्रर कर दी गई। अल्लाह का हुक्म और हिजरत का फैसला। उसी वक्त अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को साथ लिया और रवानगी की तैयारी शुरू की। लेकिन एक मसला था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की बहुत सी अमानतें थीं जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाई थीं, क्योंकि वो आपको सादिक और अमीन मानते थे। अब सवाल ये था कि इन अमानतों का क्या हो। बिस्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और सारा मामला बताया। फिर फरमाया, अली, आज रात मेरे बिस्तर पर सो जाना और सुबह ये अमानतें इनके मालिकों को वापस कर देना। ये सुनकर हज़रत अली के चेहरे पर कोई खौफ नहीं आया। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप महफूज रहेंगे? जब जवाब मिला हाँ, तो हज़रत अली ने कहा, फिर मुझे कोई फिक्र नहीं। सोचिए, एक नौजवान, चारों तरफ तलवारें और बिस्तर पर लेटकर मौत का इंतजार। ये था अली का ईमान। मौत के साए में वो रात। हज़रत अली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए। बाहर कुरैश के कातिल तलवारें लिए गात में थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से गुजर गए और किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखा। ये वो रात थी जिस पर कुरान ने गवाही दी और वो चालें चल रहे थे और अल्लाह भी तदबीर फरमा रहा था। सुबह का मंजर। सुबह हुई, कुरैश घर में दाखिल हुए। उन्होंने चादर हटाई तो देखा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे बल्कि अली थे। सब हैरान रह गए। कत्ल का मंसूबा नाकाम हो चुका था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल चुके थे। अमानतों की वापसी। हज़रत अली ने इसके बाद कई दिन मक्का में रहकर एक एक अमानत उसके मालिक तक पहुंचाई। वो लोग जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, उनकी अमानतें भी ईमानदारी से वापस की गईं। ये था इस्लाम का इखलाक, ये था अली का किरदार। मदीना की तरफ रवानगी। जब अमानतें वापस हो गईं तो हज़रत अली अकेले मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ता तवील था, पांव जख्मी हो गए, मगर हिम्मत न हारी। आखिरकार मदीना पहुंचे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। ये मुलाकात आंखों को नम और दिल को मुतमईन कर देने वाली थी। नाज़रीन किराम, ये था हज़रत अली की ज़िंदगी का वो बाब जिसने साबित कर दिया कि ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल और अमल से होता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे मदीना की ज़िंदगी, मवाक़ात का वाक़या और ग़ज़वात में हज़रत अली का किरदार। ये कहानी अभी जारी है। मदीना की ज़िंदगी, मवाक़ात और इब्तिदाई ग़ज़वात में हज़रत अली का किरदार। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद इस्लाम की तारीख ने एक नया रुख लिया। ये वो शहर था जहां इस्लाम को आज़ादी मिली, जहां मस्जिद बनी और जहां एक रियासत की बुनियाद रखी गई। हज़रत अली जब मदीना पहुंचे तो उनके पांव ज़ख्मी थे, जिस्म थका हुआ था, लेकिन दिल मुतमईन था कि रसूलुल्लाह सलामत हैं। रसूलुल्लाह ने हज़रत अली को देखा तो मोहब्बत से फरमाया और उनके ज़ख्मों पर अपना लुआबे दहन लगाया, जिससे फ़ौरन शिफा हो गई। ये था नबी और अली का रिश्ता, मोहब्बत, एतमाद और कुर्बानी का रिश्ता। मुआख़ात का अजीम वाक़या। मदीना में पहुंचकर रसूलुल्लाह ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया, जिसे मुआख़ात कहा जाता है। हर मुहाजिर को एक अंसारी भाई दिया गया। जब सबके जोड़े बन गए तो हज़रत अली खामोश खड़े थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपने सबको भाई दे दिया, मगर मेरा भाई कौन है? रसूलल्लाह मुस्कुराए और फरमाया, अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो।
ये सुनकर हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये अली के मकाम का ऐलान था। मस्जिद नबवी और इबादत। मदीना में मस्जिद नबवी तामीर हुई। हजरत अली इस मस्जिद के सुतूनों में से एक बन गए। इबादत, इल्म, खिदमत, हर मैदान में आगे। रातों को क़याम, दिन को मेहनत और हर वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत। ये वो दौर था जहां अली की शख्सियत मजीद निखर कर सामने आई। ग़ज़वे बद्र से पहले इस्लाम को अब सिर्फ तबलीग नहीं, दिफा की भी ज़रूरत थी। कुरैश ने मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए। आखिर वो दिन आ गया जब हक और बातिल मैदान में आमने सामने खड़े हुए। ये था ग़ज़वे बद्र। ग़ज़वे बद्र में हज़रत अली निहायत जवान थे, मगर हौसला पहाड़ जैसा था। जंग के आगाज में जब मुकाबले के लिए दुश्मन के सरदार निकले तो हज़रत अली आगे बढ़े। एक एक वार ईमान की ताकत से भरा हुआ था। इस दिन हज़रत अली ने बहुत से कुफ्फार को मैदान से हटा दिया। फरिश्ते भी इस जंग में नाजिल हुए और अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ थी। ये दिन साबित कर गया कि अली सिर्फ इबादत गुजार नहीं, बल्कि इस्लाम के मुहाफिज भी हैं, रसूल के मुहाफिज। हर जंग में हज़रत अली रसूल अल्लाह के करीब रहते। जहां खतरा होता वहां अली होते। ये कुर्बत इत्तिफाक नहीं थी, ये एतमाद का नतीजा थी। रसूल अल्लाह जानते थे कि जहां अली खड़े हैं वहां दीन महफूज है। इल्म का दरवाज़ा। इसी मदनी दौर में हज़रत अली का इल्म सब पर जाहिर होने लगा। मसाइल हों या फैसले, रसूल अल्लाह अक्सर हज़रत अली को बुलाते। बाद में यही वजह बनी कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ज़ुहद और सादगी। मदीना की ज़िंदगी सादगी की मिसाल थी। हज़रत अली सादा लिबास पहनते, सादा ग़िज़ा खाते और मेहनत से रोज़ी कमाते। दुनिया उनके कदमों में थी, मगर उनके दिल में नहीं थी। ये था हज़रत अली की ज़िंदगी का वो दौर जहां उन्होंने साबित कर दिया कि वो इबादत गुजार भी हैं, मुजाहिद भी, आलिम भी और रसूल अल्लाह के सबसे करीबी साथी भी। ग़ज़वे बदर के बाद इस्लाम की ताकत सब पर जाहिर हो चुकी थी। कुरैश के दिलों में इंतकाम की आग भड़क उठी थी। उन्होंने फैसला किया कि अब मुसलमानों को ख़त्म कर देना है। ग़ज़वे उहद का आगाज़। ग़ज़वे उहद में दुश्मन बड़ी तैयारी के साथ आया। मुसलमान भी मैदान में उतरे, लेकिन ये जंग एक बड़ी आजमाइश बनकर आई। जंग के आगाज़ में मुसलमानों को बरतरी हासिल थी। हज़रत अली हर महाज पर मौजूद थे। जहां खतरा होता वहां अली खड़े नजर आते। मुश्किल घड़ी और हज़रत अली। जब तीर अंदाजों ने अपनी जगह छोड़ दी तो जंग का पांसा पलट गया। कुफ्फार ने पीछे से हमला किया। बहुत से सहाबा बिखर गए। ये वो लम्हा था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतरे में आ गए। इस नाजुक वक्त में हज़रत अली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। हर आने वाले हमले को रोका, हर वार को अपने ऊपर लिया। इसी मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली के सिवा कोई तलवार नहीं और जुल्फ़िकार के सिवा कोई तलवार नहीं। ये अल्फाज हज़रत अली की शुजाअत की जिंदा दलील हैं। ज़ख्मों के बावजूद साबित कदमी। ग़ज़वे उहद में हज़रत अली भी ज़ख्मी हुए। जिस्म लहू लहान था, मगर कदम डगमगाए नहीं। वो बार बार पलटकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। ये मोहब्बत थी, ये वफादारी थी। उहद का सबक। ग़ज़वे उहद जीत या हार का नाम नहीं था, ये इताअत का सबक था। हज़रत अली ने इस जंग में भी साबित किया कि मुश्किल वक्त में ईमान कैसे जिंदा रखा जाता है। ग़ज़वे खंदक का पसे मंज़र। चंद साल बाद तमाम कुफ्फार इकट्ठे हो गए। यहूदी, कुरैश और दूसरे कबाइल सब एक साथ मदीना पर चढ़ाए। मुसलमान तादाद में कम थे। रसूल अल्लाह ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से मदीना के गिर्द खंदक खुदवाई। ये अरबों के लिए नया तरीक़ा था। खंदक और दुश्मन की नाकामी। कुफ्फार खंदक पार न कर सके, मगर एक दिन
ان کا سب سے بڑا پہلوان عمرو بن عبدود خندق پار کر گیا۔ وہ عرب کا مشہور بہادر تھا۔ وہ چیخ کر بولا کہ کیا تم میں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ یرلغار عمرو بن عبدود کا چیلنج۔ پورا میدان خاموش ہو گیا۔ عمرو بن عبدود اتنا خوفناک تھا کہ بڑے بڑے سورما پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امر ہے۔ حضرت علی نے کہا، اور میں علی ہوں۔ تاریخی مقابلہ۔ حضرت علی میدان میں اترے۔ عمرو بن عبدود نے مذاق اڑایا، لیکن علی کے چہرے پر سکون تھا۔ دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا۔ آخر کار حضرت علی نے اللہ کے نام پر وار کیا اور عمرو بن عبدود زمین پر گر پڑا۔ اس ایک وار نے کفر کی کمر توڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا اس دن کا ایک وار قیامت تک کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ معمولی جملہ نہیں تھا، یہ ایمان کی قدر تھی۔ اللہ کی مدد۔ عمرو کے مارے جانے کے بعد کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اللہ نے آندھی بھیجی، لشکر بکھر گیا۔ غزوہ خندق بغیر بڑی لڑائی کے ختم ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جہاں حضرت علی شجاعت کی علامت بن گئے۔ احد میں ثابت قدمی اور خندق میں فیصلہ کن کردار۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے فتح خیبر، در خیبر کا واقعہ اور علی کی ناقابل یقین بہادری۔ یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، جاری ہے۔ خیبر یہودی قلعوں کا مضبوط مرکز تھا۔ یہاں سے سازشیں ہوتی، حملوں کی منصوبہ بندی ہوتی اور مدینہ کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا۔ یہ معرکہ آسان نہ تھا۔ خیبر کئی مضبوط قلعوں پر مشتمل تھا اور ہر قلعہ ایک جنگ کی حیثیت رکھتا تھا۔ مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک قلعے کا محاصرہ کیا۔ کچھ قلعے فتح ہوئے، لیکن سب سے مضبوط قلعہ قموس ابھی باقی تھا۔ یہ قلعہ یہودیوں کے مشہور سردار مرہب کے زیر قبضہ تھا۔ مرہب اپنی بہادری اور طاقت پر نازاں تھا اور خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ انہی دنوں حضرت علی کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، درد اس قدر کہ دیکھنا مشکل تھا۔ اسی حالت میں وہ خیمے میں آرام فرما تھے اور میدان جنگ سے دور تھے۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر تمام صحابہ کی نظریں اگلے دن پر جم گئیں۔ ہر ایک کے دل میں خواہش تھی کہ یہ اعزاز اسے ملے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی کو لایا گیا۔ رسول اللہ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا۔ اللہ کے حکم سے اسی وقت شفا ہو گئی، جیسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ لمحہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ حضرت علی جھنڈا تھامے قلعے کی طرف بڑھے۔ ان کے قدموں میں لرزش نہ تھی، چہرے پر خوف نہ تھا، دل اللہ پر بھروسے سے بھرا ہوا تھا۔ خیبر کے قلعے کے دروازے بند تھے اور اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ مرہب کا مقابلہ۔ مرہب خود میدان میں اترا اور فخر سے اپنے اشعار پڑھنے لگا۔ یہ اس کا انداز تھا کہ دشمن کے دلوں میں خوف بٹھائے۔ حضرت علی آگے بڑھے اور اللہ کا نام لے کر مقابلہ کیا۔ دونوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی۔
आखिरकार हजरत अली के वार से मरहब जमीन पर गिर पड़ा। खैबर का सबसे बड़ा पहलवान खत्म हो चुका था। दरे खैबर का वाकया। मरहब के मारे जाने के बाद हजरत अली किले के दरवाजे तक पहुंचे। रिवायात के मुताबिक आपने किले का भारी दरवाजा अकेले ही उखाड़ लिया और उसे ढाल बनाकर इस्तेमाल किया। ये दरवाजा इतना वजनी था कि बाद में कई आदमी मिलकर भी इसे हिला न सके। ये ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं थी, ये ईमान की ताकत थी। फतह खैबर, किला फतह हो गया। खैबर मुसलमानों के ज़ेरे नगी आ गया। ये फतह सिर्फ तलवार की फतह न थी, ये हक की फतह थी। रसूल अल्लाह ने हजरत अली की शुजाअत को सराहा और सहाबा ने देखा कि अल्लाह किस तरह अपने बंदे की मदद करता है। इल्म और अदल का पहलू। खैबर के बाद भी हजरत अली सिर्फ जंगजू नहीं रहे। फैसलों में अदल, बात में हिकमत और अमल में तकवा, ये सब उनकी पहचान बन चुका था। लोग मसाइल लेकर आते और अली कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल बताते। फतह खैबर ने हजरत अली को शुजाअत की इंतहा पर पहुंचा दिया, लेकिन अली के नजदीक असल अजमत ताकत नहीं बल्कि तकवा थी। अगले और आखिरी हिस्से में हम देखेंगे हजरत अली का दौरे खिलाफत, अंदरूनी आजमाइशें और वो दर्दनाक लम्हा जब अली ने सजदे में शहादत पाई। खिलाफत का आगाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लामी उम्मत एक बड़े इम्तिहान में दाखिल हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो इस्लाम के सबसे करीबी साथी थे, इल्म और शुजाअत के मालिक थे। लेकिन आप रज़ी अल्लाहु अन्हो ने खिलाफत कबूल करने में सब्र व तदबीर का मुजाहिरा किया। उन्होंने फरमाया, मेरी ख्वाहिश नहीं मगर अल्लाह की रज़ा में मैं उम्मत के लिए कदम बढ़ाऊंगा। हज़रत अली की खिलाफत अदल, हिकमत और हक पर मबनी थी। अदल और इंसाफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो ने अपनी खिलाफत में हर फैसले में कुरान और सुन्नत को पेश किया। गरीब व अमीर सब के लिए यकसा कानून था। कोई इम्तियाज नहीं, कोई रौब नहीं। लोग मसाइल लेकर आते और अली न सिर्फ फैसला करते बल्कि दिल को सुकून देने वाले अल्फाज भी कहते। अंदरूनी आजमाइशें। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हो के दौर में अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद उन पर कई आजमाइशें आईं। यजीद की ख्वाहिशात नहीं थीं मगर फितने बढ़ गए। बास सहाबा के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए। खवारिज का बगावत की कोशिश, लेकिन हजरत अली ने हमेशा बुर्दबारी और हिकमत का मुजाहरा किया। जंगे जमल और सिफ़ीन। जंगे जमल। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने मदीना में अदल कायम रखने के लिए और फितने रोकने के लिए लड़ाई की, मगर खून रेजी से बचने की पूरी कोशिश की। जंगे सिफ़ीन, इसमें हजरत अली ने कुफ्फार और मायूस दुश्मनों के खिलाफ अपनी फौज को क़यादत दी। हर मार्का उनके ईमान और सब्र का इम्तिहान था। इल्म और रहनुमाई। हजरत अली सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि आलिम और रहनुमा भी थे। इल्म के दरिया थे। लोगों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई देते, हर मसले में इंसाफ कायम रखते। उनकी तकरीरें, खुतबे और मशवरे आज भी दुनिया के मुसलमानों के लिए रहनुमाई है। शहादत। हजरत अली की जिंदगी ईमान, कुर्बानी और शुजाअत की मिसाल थी, मगर दुनिया में हर इंसान की तरह उनका वक्त भी मुकर्रर था। रोज़े जुमा जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो एक खवारिज ने हमला किया। हजरत अली जख्मी हुए, लेकिन अपने हौसले और ईमान से लोगों को खौफजदा नहीं होने दिया। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने शहादत पाई। उनके जाने से दुनिया ने एक अजीम इंसान खो दिया, मगर इस्लाम के लिए उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। वसीयत और आखिरी नसीहतें। हजरत अली ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में इंसाफ की तालीम दी, इल्म और अमल की अहमियत बयान की, उम्मत को सब्र और तकवा का दर्स दिया। उन्होंने फरमाया, मेरा अमल और मेरा इल्म तुम्हारे लिए मशले राह हो। अल्लाह का खौफ करो, हक की बात करो और हमेशा ईमान पर कायम रहो।
یہ تھی حضرت علی کی زندگی کی مکمل داستان، ولادت سے لے کر بچپن، نوجوانی، شجاعت، علم اور عبادت، غزوات، فتوحات اور قیادت، اور آخر میں شہادت تک۔ حضرت علی کی زندگی ایمان، قربانی اور عدل کا بے مثال نمونہ ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان کے اخلاق اور ایمان سے روشنی حاصل کریں، جاری نہیں بلکہ مکمل ہوئی۔